जी, and this is reality. Anyhow, so I was sent you a link in the last week as well. I thought कि आप लोगों की क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आप लोगों ने कहा नहीं कि क्लासेस करना है अभी तो. Anyhow, we will start from here. First of all, let we concerned about the contents of your course. Definitely, relevancy one is the prerequisite for this course, and we have something different, some other properties we studied about in the real analysis one, properties of real numbers, differentiability, continuity, and also the concepts of limit a bit and sequences and series, numerical sequences. So what we are going to study in that course and what are the directions of this course is. So here are the contents of this course. First of all, we are going to start Riemann strategies integrals chapter from the book that we followed previously. Means Principles of Mathematical Analysis by Walter Rudin. This is what the book that we follow again. And the chapter of this book that we are going to start today is chapter number 6, Riemann strategies integrals. Okay. Then we have some other chapters like functions of several variables. ये real valued functions of several variables आपको नजर आ रहा है. Continuous real valued functions, partial derivatives, differentials, ये हमने पढ़ना है for the मल्टी वेरिएबल कैलकुलस कह लें आप. एक तरह से हमने थोड़ा सा उसको टच देना है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस को. 2 वेरिएबल्स तक जो है हम चीज़ों को स्टडी करेंगे उसमें. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव chapter of functions of bounded variation, this one. ठीक है जी. फंक्शंस ऑफ बाउंडेड, ये फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, इसको हम फॉलो करेंगे. कैलकुलस से भी कुछ करेंगे, कुछ हम इसमें से प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस की बुक में से करेंगे. ठीक है. Similarly, after that we have the chapter and the concepts of improper integrals. Here it is. Okay. This can also be done using some other book as well as the notes also that you can download from the mathcity.org. Okay. And finally and lastly, we have the chapter sequences and series of functions. That is part of this book which we followed previously. Sequences and series of functions. Here it is, chapter number 7. ठीक है जी. तो 3 चैप्टर्स ये आपको इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन हम उसको डिफरेंट साथ उसके फर्दर जो है वो बुक्स लगा के और फिर हम उसको स्टडी करेंगे. इसी तरह से जो 2 चैप्टर्स हैं उसमें भी हम नोट्स और कुछ अदर बुक्स जो है उसको फॉलो करेंगे. ओके. यस सर. So let we start the chapter which we called Riemann strategies integrals. What is Riemann strategies integral? So this chapter is based on the definition of Riemann integration, which depends very explicitly on the order structure of the real line. Accordingly, we began by discussing integration of real valued functions on intervals. Extensions of complex and vector valued functions on intervals follow in later section. Integration over sets other than intervals is discussed. ये मतलब वो कहता है कि हम चैप्टर्स इंटरवल्स की बजाय, क्योंकि हम तो मोस्टली रियल लाइन पर ही वो ले रहे होते हैं ना जी, ग्राफ ऑफ फंक्शंस ड्रॉ करते हैं. बट इंटीग्रेशंस कैन आल्सो बी डिस्कस ऑन द सेट्स एज वेल. वो चैप्टर नंबर 10 वो ऑल्दो हमारे इसका पार्ट नहीं है कंटेंट्स का, बट यू पीपल कैन लर्न अबाउट
दैट हाउ टू इंटीग्रेट द फंक्शंस बाय यूजिंग द सेट्स अदर देन द इंटरवल्स। ठीक है जी। लेकिन इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें एक्चुअली हम ये करने जा रहे हैं कि हम इंटरवल्स से एक और फंक्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, एंड दिस फंक्शन विल एक्चुअली बी वर्क इन प्लेस ऑफ रियल लाइन। जैसे हम एक्स की वैल्यूज लेते थे ना एक्स एक्सिस पर के जी, हमने इंटरवल ले लिया 0 से 1, ठीक है। For example, like this one, okay, and let's suppose this is a function, ओके जी। ये तो हम करते थे सिंपल रीमान इंटीग्रल्स में। अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं अल्फा दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन लाइक दिस वन यू कैन से। तो अब अगर हम ये पॉइंट्स लेते हैं तो so the area what we are talking about is, जिसको अब हमें कैलकुलेट करना है दिस वन, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। रीमान स्टाइलस इंटीग्रल हमें इस हिस्से का एरिया जो है वो कैलकुलेट करके देता है। जैसे पहले कहते थे ना बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व, अब हमने ये वाला बिटवीन अल्फा ऑफ एक्स जो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये हमें रीमान इंटीग्रल से मिलेगा। और हम ये कहेंगे एफ इज रीमान इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन अल्फा, इसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेबल होगा हमारे पास, ठीक है। और ये जो केस है हमारे पास रीमान इंटीग्रल का, दिस इज मोर जनरल एज कंपेयर टू दैट ऑफ रीमान इंटीग्रल, बिकॉज इफ वी कैन टेक अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, अगर हम अल्फा ऑफ एक्स को एक्स ही ले लें। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी क्लियरली जो है मेरे सिस्टम की भाई? ये ऊपर कुछ यस सर, ऊपर आपने जूम मीटिंग ऊपर ओपन की है वो भी साथ आ रही है सर, ये ब्लैक ब्लैक भी आ रहा है कुछ, इसीलिए तो पूछा है ना, मुझे लग रहा था कि सर क्लियर है। अब हुई है सर, पहले हुई थी अब फिर वैसे हो गया, ये ब्लैक सा कुछ हुआ। एक्स्ट्रा ही एक जो है ना वो ओपन हुई है कोई। सर इसको ऊपर से कट कर दे, हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ सर मिनिमाइज कर दें या ऊपर से कट कर दें, हो जाएगी। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज के ये इस तरह से हमारे पास, तो मैं ये कह रहा था अल्फा एक्स को अगर एक्स के इक्वल ले लेंगे तो ये देखिए ना आप, जब मैं एक्स ये वाली वैल्यू अगर 1 है तो अगर अल्फा ऑफ एक्स को मैंने जो अल्फा ऑफ एक्स अल्फा ऑफ 1 जो है ना वो ये वैल्यू थी, अब अगर अल्फा ऑफ एक्स को एक्स ले लिया तो अल्फा 1 तो 1 नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला पॉइंट दोबारा कहाँ आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। ये अगर हमारे पास जो है ना वो सेकंड वैल्यू थी, लेट्स सपोज ये 1.5 थी, तो 1.5 अल्फा की वैल्यू तो ये है यहाँ पर, लेकिन जब हमने अल्फा ऑफ एक्स को एक्स रखा है तो अल्फा 1.5 यहाँ पर आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें ये फंक्शन जो इंक्रीजिंग है दिस विल बिकम्स द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अल्फा ऑफ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, राइट जी। राइट सर फीड कर दें एक मरतबा। भाई ये देखो ना अल्फा ऑफ एक्स अगर कोई जनरल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर तो ये मैंने रेड से बनाया भाई ये, और ये हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसका इंटीग्रल हमें चाहिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम f का इंटीग्रल अल्फा ऑफ x की रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करें तो ये जो आपको ब्लू शेडेड एरिया नजर आ रहा है एक्चुअली हमने ये कैलकुलेट करना है। और हम ये कह रहे हैं और क्लेम हमारा ये है कि जो रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल है वो मोर जनरल फॉर्म है रीमान इंटीग्रल की भी। कैसे, वो मैंने आपको कहा कि अगर हम अल्फा ऑफ एक्स की एक मखसूस वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लें, अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये वाली वैल्यू अगर हम ले लें तो हमारे पास जो रिजल्ट है, ये जो रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल है, दिस रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू रीमान इंटीग्रल, तो वो रीमान इंटीग्रल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आई है बात? क्योंकि अगर अल्फा को यूज करते हैं तो ये अल्फा 1 की वैल्यू है, ये अल्फा 1.5 की वैल्यू है, ये अल्फा लेट सपोज 1.7 या 8 या 9 की वैल्यू है। तो लेकिन जब अल्फा ऑफ एक्स को एक्स रखा होगा तो अल्फा 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट आपको पहला सर्कल नजर आ रहा है ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पर आ जाएगा 1 पर। जो अल्फा 1.5 पहले यहाँ था वो यहाँ पर आ जाएगा एक्स एक्सिस पे 1.5 पर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है। Okay. Now let we start to approximate and to calculate the Riemann integrals. Right. So let AB be the given interval by partition P of AB. We mean a finite set of points x0, x1, x2, x1, xn such that this can be the partition points. डेल्टा ऑफ एक्स आई हम लेते हैं एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1। रिमान सम में आप जानते हैं डेल्टा ऑफ एक्स की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट की जाती है। And we can find the supremum of the value of the function between every sub interval। हर सब इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उसी सब इंटरवल में फंक्शन की इनफीमम वैल्यू कैलकुलेट की जाती है स्मॉल ऑफ एम आई। ओके हो गया जी? और जब हम अपर सम और लोअर सम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लिखते हैं यूपीएफ और एलपीएफ, सुमेशन ऑफ एम आई डेल्टा एक्स आई और सुमेशन ऑफ स्मॉल ऑफ एम आई डेल्टा एक्स आई। ये कैलकुलस का बेसिकली चैप्टर है। आपने जो है ये इसको एनालिटिकल कैलकुलस जो है उसमें आपने इसको पढ़ा है। वहां पर ये थी जब हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन को जब स्टार्ट करते हैं उसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस का भी ऑप्शन होता है। पता नहीं आप लोगों ने उन चैप्टर्स को पढ़ा है या नहीं पढ़ा। बीएससी में बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ भी दिए जाते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो उसको प्लीज देखिएगा जाकर। ये कैलकुलस की फॉरेन ऑथर्स की कोई भी बुक पकड़ें और उसमें इंटीग्रेशंस के स्टार्ट में चले जाएं तो सबसे पहले जो रीमान इंटीग्रल है उसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो यही होता है। हम अपर सम और लोअर सम्स बनाते हैं और उन अपर सम और लोअर सम्स की वैल्यूज की मदद से अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल बनाते हैं और उन अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यूज को देखते हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। मैं एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, अगर आपके पास कोई फिगर है, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ आपके पास एक रेक्टेंगल है, अगर इफ यू हैव अ रेक्टेंगल और अ स्फीयर, यू हैव अ वेरी इजी प्रोसेस टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल और स्फीयर। है ऐसे ही है ना, लेंथ इनटू विड्थ को मल्टीप्लाई करो, साइड्स या वॉल्स का एरिया चाहे इसी तरह से आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो। ओके राइट जी? तो प्रॉब्लम तब होता है जब हम इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो आपके सामने अभी नजर आ रहा है आपको, और आपसे कहा जाए कि इस कर्व के नीचे और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया को कैलकुलेट करें। ठीक है, अब ना तो ये रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना स्फीयर है, ना सर्कल है, कुछ भी नहीं है, तो हाउ टू कैलकुलेट? ठीक है जी, ना ही सर्कुलर प्लेट है कि हम उसका सरफेस एरिया निकाल लें, ना ये रेक्टेंगल है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है कि हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सके। तो हम क्या करते हैं फिर इसको हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं जी एरिया को। सबसे पहले तो हम कहते हैं ठीक है, जिनके एरिया हमें पता है वो तो बना सकते हैं ना, मतलब रेक्टेंगल्स का एरिया हमें निकालना आता है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम इसके ये अपर सम है, रेक्टेंगल्स बन गई है ना, अब तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा। लेकिन ये मैंने कौन सा रूल लगाया, ये मैंने कैपिटल ऑफ एम की वैल्यू यूज की है, यानी हर सब इंटरवल में, जैसे ये एक्स नॉट और एक्स वन था, ये एक्स नॉट और एक्स वन है, एक्स नॉट और एक्स वन में हमारे पास फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं वो क्या है जी, वो ये सुप्रीमम वैल्यू थी, ये इन्फीमम वैल्यू थी। तो पहले मैंने अपर सम बनाया जो आपको नजर आ रहा है,
लेकिन एरिया अंडर द कर्व ये है जो नीचे आपको नजर आ रहा है, जबकि हमने जो एरिया कैलकुलेट किया वो तो बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं ये सारा एक्स्ट्रा एरिया है, दिस इज ऑल इज एक्स्ट्रा, दैट इज मोर देन द एक्चुअल एरिया। आर यू एग्रीड और नॉट? जी सर। और अगर मैं इनफिमम वैल्यू यूज करता, यानी ये वाली वैल्यू यूज कर लेता, तो फिर एरिया ये बनना था। क्योंकि हम तो रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना जानते हैं। अब क्या हुआ, अब ये वाला एरिया कम है, कर्व के नीचे आ रहा है, लेकिन हमारे लोअर सम में ये एरिया इंक्लूडेड नहीं है। नहीं है। ठीक है जी। तो हम करते क्या हैं, एक पार्टीशन बनाई, फिर दूसरी पार्टीशन बना लेंगे, फिर तीसरी बना लेंगे। तो हम इस तरह करते जाएंगे और देखेंगे कि कोई ऐसी पार्टीशन भी है जिसमें हमें अपर सम का जो आंसर है ना, अपर सम का जो एरिया है वो सबसे छोटा मिले। उसको हम कहते हैं अपर रीमान इंटीग्रल। ये अपर बार लगा देते हैं इंटीग्रल के ऊपर ना, ठीक है, और ये लोअर बार लगा देते हैं इंटीग्रल के ऊपर। ठीक है, राइट? यस सर। तो अब होगा क्या कि लेट सपोज मैं कहता हूँ ये मैंने एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिया, तो एक नया एरिया हमारे पास आ गया। चलो 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी मजीद क्लैरिटी आ जाए। ये मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, अब इसमें ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। अब होगा क्या, अब जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। अब आप देख सकते हैं वो जो मैंने पहले एरिया हाईलाइट किया हुआ था, जो शामिल नहीं था लोअर सम्स में, अब शामिल हो नहीं गया। जी सर। यस सर, हो गया। ये देखें कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ रहता है। अब ये वाला एरिया अभी भी रहता है, ये वाला, जी सर। ये तो वाला फिर एरिया अभी सर भी रहता पार्ट्स है। में चेंज, फिर लेकिन हम पार्ट्स बना लेकिन लेंगे। हाँ, लेकिन हुआ ये है कि आपका जो लोअर सम था ना, इसको हम लोअर सम कहते हैं ना, जो लेफ्ट हैंड पॉइंट यूज करते हैं, और राइट हैंड पॉइंट यूज करके जो कर रहे होते हैं, वो हमारे पास अपर ऊपर सम से कहलाता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से ये देखे ना, ये अपर सम कैलकुलेट करूँ, ये देखो कुछ एरिया इसमें भी शामिल हो गया है, और कुछ एरिया ये देखो जो पहले शामिल नहीं था, अब इसमें शामिल हो गया है। इसी तरह से ये एरिया जो निकला हुआ था पहले था, अब इसमें शामिल हो गया है, और यहाँ से भी कुछ एरिया ये देखो शामिल हो गया। अब हमारे पास थोड़ा एरिया बचा है जो एक्चुअल एरिया से मतलब थोड़ा एक्सक्लूड हो गया। ये वाला हिस्सा एक्सक्लूड हो गया है, ये वाला हिस्सा एक्सक्लूड हो गया है, ये वाला हिस्सा एक्सक्लूड हो गया है, और हमारा जो एरिया था अपर सम का वो थोड़ा सा मोर नियर टू आ गया एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व के। ऐसा ही नहीं होगा? जी सर। यस सर। तो अगर हम इस प्रोसेस को बेटा कंटिन्यू रखें, एक वक्त आएगा कि जो लोअर सम्स का इंटीग्रल है ये एग्जैक्टली इस एरिया के इक्वल आ जाएगा, जो अपर सम का इंटीग्रल है वो भी इसके इक्वल आ जाएगा, और अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल यानी अपर सम में सबसे छोटी वैल्यू और लोअर सम में सबसे बड़ी वैल्यू जिस पार्टीशन के अगेंस्ट हमें मिलेगी, असल में वो ऐसी वैल्यू होगी जो अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल्स को एक दूसरे के इक्वल कर देगी। जी सर। अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल्स को एक दूसरे के इक्वल कर देगी, और जब ये वैल्यू इक्वल होगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है इस पार्टीशन के लिए। ये जो फंक्शन, अच्छा अगर ऐसा फंक्शन कोई होगा जो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, यानी जिसका इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता होगा, उसके लिए क्या होगा, कोई भी ऐसी पार्टीशन आपको नहीं मिलेगी जिसके अगेंस्ट अपर सम और लोअर सम का आंसर जो है ना वो इक्वल आ जाए। कोई भी पार्टीशन ऐसी नहीं मिलेगी आपको। ओके? यस सर। So this is what we call this is what we call Riemann integral, that is being approximated by using the upper sum and lower sum, and then by considering the upper sum की infimum value, lower sum की supremum value। अच्छा मुझे कौन बताएगा इस अपर सम का इस इनफिमम की वैल्यू के साथ क्या रिलेशन बनता है? जी बनता है कोई रिलेशन? डायरेक्ट। जी बेटा जी बोलें। सर जी अपर सम में से जो वैल्यू हमने पॉइंट लेना है वो छोटा लेना है, यानी कि दूसरे पॉइंट से जो छोटा होगा। तो ये इनफिमम का आंसर इसके साथ ये बनेगा।
ये वाला यूपीएफ अल्फा इस इन्फिमम वैल्यू के या तो बराबर हो सकता है और या फिर ये वाली इन्फिमम वैल्यू जो है यानी लोअर रिमान इंटीग्रल जो है वो इससे छोटा रहेगा। जबकि एलपीएफ का क्या रिलेशन बनता है, एलपीएफ का रिलेशन ये बनता है कि एलपीएफ की वैल्यू लोअर रिमान इंटीग्रल से छोटी होती है या इसके बराबर हो सकती है। अब बराबर कैसे हो सकती है? अगर ये वही पार्टीशन है ना, ये वही पार्टीशन है जो हमें इन्फिमम ऑफ अपर सम बनाकर देती है, तो ये वाला अपर सम और ये वाला इन्फिमम वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। अगर ये वाला लोअर सम वो ये पार्टीशन वो नहीं है जिसके लिए हमें सुप्रीमम वैल्यू मिल रही है, तो फिर ये लोअर सम छोटा रहेगा और सुप्रीमम ऑफ द लोअर सम यानी लोअर सम में सबसे बड़ी जो वैल्यू है, जाहिर है भाई वो बड़ी ही हो सकती है, छोटी तो नहीं ना हो सकती, तो ग्रेटर रहेगी या फिर एटलीस्ट क्या हो सकता है उसके इक्वल हो सकती है। ओके, यस ठीक सर। है, तो ये चीज है। तो और अगर ये दोनों फंक्शन रिमान अगर हमारा फंक्शन जो है ना एफ और रिमान स्टाइल चीज इंटीग्रेबल हो जाता है, तो ये अपर इंटीग्रल लोअर रिमान इंटीग्रल इक्वल हो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर ये जो रिमान इंटीग्रल है जिसको हम ए से बी एफ डी एक्स से प्रेजेंट करते हैं, एक तो ये कि हम कहेंगे एफ आर आप से बिलोंग करता है, आर का मतलब है क्लास ऑफ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन से बिलोंग करता है, और अपर और लोअर रिमान इंटीग्रल फिर एक ही नोटेशन इनकी हो जाएगी और वो होगी ए टू बी एफ डी एक्स, ये वाली नोटेशन। तो यहाँ से हमें एक और बात जो पता चली वो ये कि लोअर सम या तो लेस आर इक्वल होता है किससे? रिमान इंटीग्रल से, और रिमान इंटीग्रल लेस आर इक्वल होता है यूपीएफ यानी अपर सम से, किसी भी आर्बिट्रेरी अपर सम से। तो ये हमेशा इनके इन बिटवीन ही लाई कर रहा होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो हमारा इसी से ही रिलेटेड है। बुक में तो उसने एज इट इज दे दिया है, क्वेश्चन बना के अगर हम लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे ना, द अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स आर डिफाइंड फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमने रिमांस इंटीग्रल्स कैलकुलेट किए हैं, हो सकता है इससे पहले आप लोगों में ये कंफ्यूजन मौजूद हो कि अगर फंक्शन एफ कंटिन्यूअस होगा तभी उसका रिमान इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है, एफ के लिए कंटिन्यूटी की कंडीशन नहीं होती, बल्कि एफ को हम कहते हैं अगर वो बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसका रिमान इंटीग्रल एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब वो अगर डिसकंटिन्यूअस भी है तो फिर भी उसका रिमान इंटीग्रल एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन वो डिसकंटिन्यूटी जाहिर है किस टाइप की हो सकती है? वो ये हो सकता है कि आपका लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती हो, राइट लिमिट एग्जिस्ट करती हो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल ना हो, या लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करें, लेकिन लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल ना हो। यानी नॉन एग्जिस्टेंस की बात कहीं नहीं हो रही। हम ये नहीं कह रहे कि दरमियान में से इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी हो सकती है और वो फर्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, फिर भी हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो ये जो बात है कि अपर और लोअर इंटीग्रल्स जो हैं वो बाउंडेड होते हैं, ये हमने प्रूव करना है। यानी जब हम कोई फंक्शन लेते हैं ना एफ जो कि बाउंडेड होता है किसी इंटरवल ए बी में, तो उसका चाहे आप अपर रिमान इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें या आप उसका लोअर रिमान इंटीग्रल कैलकुलेट कर लें, वो अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल दे ऑलवेज बी लाइज इन बिटवीन सम स्पेसिफिक कांस्टेंट्स। वो यकीनन हमेशा फाइनाइट रियल नंबर के दरमियान ही लाई करते हैं। दे कैन नॉट एक्सीड्स ए फिक्स नंबर। क्या हम ये कहें कि उसकी वैल्यू जो है रिमान इंटीग्रल की वो ग्रेटर और इक्वल टू सम नंबर हो गया, ग्रेटर और इक्वल तो वो प्लस इन्फिनिटी पर भी जा सकती है, या लेस और इक्वल हो गया तो माइनस इन्फिनिटी पर भी जा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट रिजल्ट। तो इसको प्रूव करना देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात जो हमें बताई गई है स्टेटमेंट में वो ये है कि एफ